Hello students, myself Mitesh Misra is here with the new video in which I am going to explain how to remove the temporary files. Students, this one topic is for the class 10 and the topic is related with the chapter 2 and unit 3. Students, before going to start the way how to remove the temporary files, to be first important to know. The first thing is quite important to know about what is temporary files and what does it mean. Temporary files basically having the TMP extension in the computer and is created at the time of creating a new file or opening the existing file in our computer. The file while the new file is created and while the existing file is opened, the temporary files is created. This temporary files is quite important at the time of losing the data files from the computer due to the sudden halting of the computer. यह टेम्परेरी फाइल्स उस समय के लिए जरूरी हो जाता है जब आपका कंप्यूटर किसी भी कारणवश अगर हाल्ट हो गया, रुक गया और वह फाइल को आपने सही से बंद नहीं किया, सही से बना नहीं, वैसे टाइम के लिए and if you require to recover the same data file from the computer at that very extent, at that very time, this temporary file is quite helpful to recover the same data file. वैसे क्रम में यह टेम्पररी फाइल्स आपके लिए काफी उपयोगी होता है और जैसा कि हमने कहा कि यह टेम्पररी फाइल्स में साधारणतया tmp एक्सटेंशन लगा रहता है. स्टूडेंट्स, तो ऐसा टीएमपी फाइल्स एक नहीं कई कंप्यूटर में अपने आप बन जाते हैं, अपने आप वो एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, अपने आप डेवलप कर जाते हैं. एंड दिस लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स, सपोज द टेम्पररी फाइल्स आर प्रेजेंट इन the large number in the computer system, then the large area of the computer disk is occupied by such files, due to which it will get to slow down our computer system. यह टेम्पररी फाइल्स की उपस्थिति जो है हमारे हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के स्पीड को डाउन कर देता है. तो that is why it is quite necessary to remove such unnecessary files, such temporary files from the computer. So let us know what are the ways, what are the steps by using which we can remove these unnecessary files from our computer systems. So first of all, suppose we require to remove the unnecessary files from the computer, temporary files from the computer. First of all, have to double click onto the my computer icon onto the desktop. So clicking here, this is the Windows 10, that is why the icon is present in the name of this PC, and but in Windows 7 you will see there my computer icon will be there. So double click here. After double clicking, this one window is opened. Now if you require is to remove the unnecessary files or the temporary files from the C drive, तो राइट क्लिक ऑन टू द सी ड्राइव. अगर आपको सी ड्राइव से, डी ड्राइव से, अपने कंप्यूटर में या किसी भी ड्राइव से, किसी भी लोकेशन से अननेसेसरी फाइल्स को हटाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू राइट क्लिक ऑन टू द लोकल डिस्क आइकॉन, उस पर राइट क्लिक करें आप. आफ्टर राइट क्लिकिंग you will get this shortcut menu, and in shortcut menu have to choose properties option. आप प्रॉपर्टी ऑप्शन को चूज करना है. प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स हैज बीन ओपनड नाउ. अब प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो गया. नाउ हैव टू क्लिक ऑन टू द डिस्क क्लीन अप बटन. दिस विल एनालाइज the unnecessary files types
in your computer, such as downloaded program files, maybe the unnecessary files in the computer, temporary internet files, DirectX shader cache, delivery optimization files, and these all are the category of the unnecessary files occupied in our computer. Downloads, recycle bin, temporary files, and so we'll have to क्लिक इन इट्स चेक बॉक्स। इसके चेक बॉक्स में आपको सेलेक्ट कर देना है, मतलब चेक बॉक्स को क्लिक करके मतलब चेक हो जाना है। उसके बाद आप ओके करें तो इस हिसाब से आपका वो सेलेक्टेड फाइल्स जो है आपके कंप्यूटर में वो अननेसेसरी फाइल को चूज करके वो हटा देगा। नाउ द डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन। यह क्लीनअप यूटिलिटी जो है हमारे कंप्यूटर से अननेसेसरी फाइल को चूज करके उसको हटा रहा है। यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन टू डिलीट दिस फाइल। कंटिन्यू कर देना। तो ये जो है तुम्हारे कंप्यूटर में जो अनड्यू फाइल्स था, अननेसेसरी फाइल्स था, उसको हटा दिया। ओके, आफ्टर दैट हैव टू क्लिक ऑन ओके। So this is the method by using which we can remove the unnecessary files, temporary files also from our computer, from our hard disk. Next one method, how to remove files from the temporary folder. अगर temporary folder से हमें कैसे हटाना है, तो first have to close it. इसको क्लोज कर देना है एंड क्लोज करने के बाद अब देखेंगे आप कैसे हटाना है। तो सपोज वी रिक्वायर टू रिमूव फाइल्स फ्रॉम द टेम्परेरी फोल्डर्स, देन विल हैव टू प्रेस डाउन द विंडो बटन एंड आर की। विंडो बटन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ आर की विल ओपन द रन डायलॉग बॉक्स। ये रन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देगा और रन डायलॉग बॉक्स जब ओपन हो जाए उसके बाद आपको ये टाइप कर देना है। क्या टाइप करना? परसेंट TMP again %. After that have to click on OK. You will see the temporary folder is now opened. और यहां पे आप देखेंगे कि कुछ फाइल्स की लिस्ट यहां पर है। चूंकि अभी हमने वो सारा फाइल्स हमने हटाया था इसलिए यहां पर वैसे फाइलों की संख्या कम है, लेकिन अगर काफी दिनों से अगर आप ये यूज नहीं किए हो तो आप देखोगे यहां पे बहुत सारे संख्या में फाइल्स आपके मौजूद होते हैं। तो देन विल हैव टू यूज द कंट्रोल A, द कॉम्बिनेशन की, टू सेलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस एरिया। इस एरिया से सभी को सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट हैव टू गो टू हियर एंड क्लिक ऑन डिलीट और द प्रेस डेल बटन फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से डेल बटन को दबाना है। इसको ट्राई करें, नहीं तो यहां पे क्लिक करके एंड ट्राई कर दें। ओके, ट्राई अगेन। इफ इट इज नॉट डिलीट, स्किप इट, इसको स्किप कर दें। तो दिस इज द मेथड इज टू, ये चूंकि फाइल्स कहीं यूज में है, दैट इज व्हाई वी कांट डिलीट द सेम फाइल्स फ्रॉम द टेम्परेरी फोल्डर्स। तो इसके बाद तो ये आपने सीखा कि हाउ टू रिमूव टेम्परेरी फाइल्स फ्रॉम द यूटिलिटी, फ्रॉम द डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड from the temporary folders. After that the chapter 2 of unit 3 has been completed for class 10. So till have a nice day and thank you.